Welcome students. In this video, I will continue programs based on CSV file. In the last video, you have seen that we have created two files, emp.csv and doctor.csv. So if you have not seen that video, first you must refer to that video and then see this one. So let us see the next program. Write a program to read the contents of the CSV file named doctor.csv and display name and fee of the doctor having minimum consultation fee. So here you have to basically read the contents of this file and display name and fee of the doctor who is having minimum consultation fee. So you can see here doctor.csv file was created without the new line argument. That is why while reading this file I have used this new line is equal to \r/n so that while reading there is no problem of EOL translation. Okay. Now here you can see I have created the reader object. All the rows are of the file will be existing in this RD, right? Then I have taken out the first row of the file, which is the heading row, and that heading row I have is containing only the headings, it is not containing any data. Okay, so here we have to find out the record which is having the minimum consultation fee. So for that purpose this row is not useful for us, so we are simply reading it and then moving to the next row. Then again I have written this statement, this will fetch me the first row of data. ठीक है, जो फर्स्ट रो ऑफ डेटा है जिसमें एक्चुअल डेटा है वो फैच होके आएगी और उसकी फीस को मैंने मिनिमम फ़ी मान लिया है. ठीक है, और यहाँ क्या किया है, स्टोरिंग द रिकॉर्ड हैविंग मिनिमम फ़ी. मैंने मान लिया कि जो सबसे पहला डॉक्टर है, मेरी सबसे पहला जो रिकॉर्ड है उसी की मिनिमम फ़ीस है. ठीक है, लेकिन आगे अगर हमें कोई फ़ीस ऐसी मिलेगी जो कि इनकी कंसल्टेशन फ़ी से भी कम होगी तो हम उसको मिनिमम फ़ी मान लेंगे. ठीक है, नाउ फ्रॉम व्हेन वी रन दिस लूप इज़ रनिंग फ्रॉम द थर्ड रो. वाई, फर्स्ट रो तो हेडिंग की थी, सेकेंड रो को हमने मिनिमम मान के रखा है. अब थर्ड रो जो है उसमें से ये स्टार्ट होगा, एक्स को थर्ड रो मिलेगी और उस रो की फ़ीस को हम मिनिमम फ़ीस से कंपेयर करेंगे. अगर वो फ़ीस और कम निकली तो हमने मिनिमम फ़ी देखिए इसी एक्स के 3 को मान लिया है. इंट क्यों किया, क्योंकि जब आप CSV फाइल पे डेटा लिखते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके लिख जाती है वहाँ पे. तो जब आपको उस पर कुछ ऑपरेशन करना होगा तो आपको उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर इसकी फ़ीस मिनिमम फ़ी से कम है तो हमने मिन फ़ी में इसको स्टोर कर लिया और आर में इसी रिकॉर्ड को मिनिमम रिकॉर्ड मान लिया. ठीक है, व्हेन दिस लूप विल बी ओवर you will see that min fee is having the minimum fee and R is the record of the doctor who is having the minimum fee. So the question asked me to display the name and fee of this doctor. So see, doctor R1, one is at the one index you are finding the name of the doctor. So R1 has the minimum consultation fee of rupees min fee. Okay, let us see the output of this code. Here you can see Dr. Dheeraj has the minimum consultation fee. See, this was the content of the file. ठीक है, now in this content जो हमने सबसे पहली बार रीड की थी वो ये वाली रीड की थी, इससे हमें कोई काम नहीं है, इसमें तो डेटा है नहीं. उसके बाद मैंने इस रो को मिनिमम फ़ी वाली रो माना था, फिर मैंने यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट किया था. अब जब ये कंपेयर होगा तो 400 इज़ लेस देन 600 तो मिन फी इसकी बन जाएगी. नेक्स्ट बार आप जब कंपेयर करेंगे इसको तो 800 इज़ नॉट लेस देन 400 तो 400 ही मिनिमम फ़ी रहेगी. फिर आप इससे कंपेयर करेंगे 1200 इज़ ऑल्सो नॉट लेस देन 400 तो यही मिनिमम फ़ी रहेगी. इसके बाद एंड ऑफ फाइल आ जाएगा, मीन्स यू विल कम आउट ऑफ द लूप एंड सी डॉक्टर धीरज इज़ हैविंग द मिनिमम कंसल्टेशन फी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज write
write a function named transfer that reads the contents of CSV file named emp.csv and creates another CSV file female.csv containing records of female employees only. So here we are considering that emp.csv is having some records. This file was also created in the last video, children. So here you can see that emp.csv is having records of some employees in which few are male and few are female, but you have to create another file female.csv which is containing only female employees record. So for this, first of all you are importing CSV module, then transfer function is opened, then emp.csv is opened in read mode and female.csv is opened in write mode. This is the new file that you are creating. And see, new line is equal to null string क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम female.csv में लिखने जा रहे हैं. अगर हमने ये नहीं लगाया तो फिर empty records वाली प्रॉब्लम यहाँ आएगी. ठीक है? So to suppress the EOL translation, I am writing this thing for the file which is opened for reading, for writing. फिर मैंने सबसे पहले रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और किसके लिए क्रिएट किया? emp.csv के लिए रीडर ऑब्जेक्ट और female.csv के लिए राइटर ऑब्जेक्ट, क्योंकि emp.csv पे हमें रीडिंग करनी है और female.csv पे हमें राइटिंग करनी है. ठीक है? उसके बाद हमने सबसे पहली रो रीड कर ली क्योंकि वो हेडिंग्स की रो है, उससे हमें कोई काम नहीं है. ठीक है? फिर और हमने ये जो हेडिंग वाली रो है इसमें हमें कुछ चेक तो करना नहीं है, मैंने उसको सीधे female.csv पे लिखवा दिया ताकि female.csv में भी ये बात क्लियर रहे कि कौन कौन से डिटेल्स एम्प्लॉयज़ के बारे में हैं इस फाइल में. ठीक है? तो हमने फर्स्ट रो हेडिंग वाली रो को रीड करके उसको डायरेक्ट लिखवा दिया, उसमें कुछ चेक नहीं करना. लेकिन सेकंड रो से हमें चेक करना है कि अगर जेंडर फीमेल है, 2 इंडेक्स पे आपको जेंडर मिल रहा है, तो अगर जेंडर फीमेल है तभी उसको दूसरी फाइल पे लिखना है. ठीक है? तो जी द फाइल एसोसिएटेड विद जी, उस पे जाके हमारी ये लिख देगा. कैसे पता चलेगा कि जी पे लिखना है? क्योंकि WR हमने देखिए किसके लिए बनाया था? जी के लिए. देखिए WR ये राइटर ऑब्जेक्ट है, ये जी के लिए है, तो ये जब भी लिखेगा वो जी पे लिखेगा. तो WR.write रो X. फिर female.csv फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली. दिस इज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंड यूज़र. फाइल हमारी बन गई, हमने दोनों फाइल को क्लोज किया और उसके बाद मेन प्रोग्राम में ट्रांसफर फंक्शन को कॉल कर लिया. ठीक है? तो लेट अस सी द आउटपुट स्क्रीन. हेयर यू कैन सी दैट female.csv फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी कि आपके कुछ फीमेल रिकॉर्ड्स वहाँ पे जाके लिख गए हैं. लेट अस सी द कंटेंट ऑफ female.csv. यू कैन सी दैट दिस इज द female.csv फाइल. यहाँ पे नेम देखिए. ठीक है? और इसमें देखिए वही रिकॉर्ड्स हैं जो कि फीमेल एम्प्लॉयज़ के हैं. ठीक है? सबसे पहले हमारी कौन सी रो है? हेडिंग वाली रो है. उसके बाद हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड हैं. एंड इफ़ यू ओपन द सेम फाइल इन द टेक्स्ट एडिटर यू विल फाइंड इट इन दिस फॉर्मेट. ओके? नेक्स्ट प्रोग्राम इज कंसिडर दैट फाइल CSV emp.csv is already created and you have to write a function named search emp that searches and displays the name and salary of that employee whose empno is sent as an argument to the function. Means user is going to tell you a employee number and you have to display the name and salary of that employee. If he is existing you will display the details. If he is not existing you will tell to the end user that no such employee is present. So for this searching you have performed many times in text file and binary file also. See in the main program what is being done. First of all you are asking for a employee number and then sending this employee number in the search emp function. In the search emp function, see n is receiving the value of x. Now emp.csv is opened in read mode. After that reader object is created. Found is initially false. इस वेरिएबल से हम ये पता करेंगे कि हमें जो रिकॉर्ड हम ढूंढ रहे हैं ये हमें मिला कि नहीं मिला. ठीक है? हेडिंग्स वाली रो में हमें कोई काम नहीं करना है, इसलिए हमने उसको रीड करके
रीड करके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा में सर्च करना है, हमें हेडिंग्स में सर्च नहीं करना। तो हमने कर्सर को डेटा की फर्स्ट रो पे ले आया। डेटा की फर्स्ट रो कहाँ होती है? हेडिंग्स के बाद। तो हेडिंग वाली रो हमने रीड कर ली। अब आरडी कहाँ से स्टार्ट होगा? सेकेंड रो, जहाँ पे डेटा की फर्स्ट रो है, एक्स में आएगी। चेक करेंगे कि अगर x0 इंट में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमारा एम्प्लॉय नंबर इंटीजर है, एन भी इंटीजर है, स्ट्रिंग का इंटीजर से कंपैरिजन नहीं हो सकता। x0 अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो x0 स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, आपको एरर आएगी, इसलिए इंट में कन्वर्ट किया, फिर n से कंपेयर किया। अगर सेम होगा तो आपने उसका नेम और सैलरी डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, और फाउंड को ट्रू कर लिया, ठीक। उसके बाद ब्रेक कर दिया। जैसे ही हमें देखिए एम्प्लॉय आईडी सबकी सेम नहीं होगी, एक ही एम्प्लॉय होगा जिसका एम्प्लॉय नंबर वो होगा, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर हम यूनिक रखते हैं, तो हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन कभी ट्रू होगी तो आपका फाउंड ट्रू बन चुका होगा। अगर लूप का पूरा एंड हो जाने के बाद, लूप एल्स पे आप कब आते हैं? जब आपकी फाइल के सारे रिकॉर्ड्स रीड हो चुके होते हैं, मतलब इस आइटरेशन इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं। आप लूप एल्स में आए, अगर लूप एल्स में आने के बाद भी फाउंड फॉल्स है तो इसका मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड आपको मिला ही नहीं जिसका एम्प्लॉय नंबर इस एम्प्लॉय नंबर से मैच किया, ठीक है। अदरवाइज आप ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं डिटेल्स, उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। लेट अस सी द आउटपुट स्क्रीन। यू कैन सी आई गेव द नेम एज, I gave the employee number as 103. Okay, so corresponding to that name was Bhushan and 80,000 was the salary. But I am running another, means I am running the code again, and this time I gave the employee ID as 202, but 202 was not existing, so no such employee present. So you can see children, this way you know that there are many operations like searching, deleting, in which you require reading. Once you have learned how to read the contents, then you can perform such operations also, means display on the basis of certain condition, then search operation, then delete operation. All these you can you can perform easily. Okay, so I hope you must have understood the programs that are discussed here. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.